آج خدا کے کلام مقدس دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا زبور کی کتاب، زبور 146. شاید بہت بار آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. اس کی 5ویں آیت، زبور 146 ورس نمبر 5. جی پلیز پڑھیے گا، جس نے نکال لیا پلیز پڑھیے گا. جی کلام کے زندگی بخش پاک کلام میں سے زبور کی کتاب، اس کا 146 زبور، اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے: خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پر سے پر خداوند کی برکت. خداوند کا شکر ہو. سب لوگ بیٹھے، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیپی از دا مین ہو ہیز دا گاڈ. ہیپی از دا مین ہو ہیز دا گاڈ. خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے. آمین. خوش نصیب یعنی کہ ہر انسان نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسی بھی خوش نصیب ہاں، اسی بھی خوش نصیب ہاں. نو، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اسرائیل کا خدا ہے. وہ خوش نصیب ہے. اور خوش نصیبی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے ساتھ جڑنے سے. خوشی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جوائے کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے ساتھ رہنے سے، خدا کے حضور جھکنے سے، خدا کے قدموں میں آنے سے ہمیں ایک علیحدہ سے جوائے مل جاتی ہے، خوشی مل جاتی ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے خدا کی عبادت کی ہے. جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ پرمسرت ہوتے ہیں اور وہ جا کر کہتے ہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میں اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف اٹھاتا ہوں، اور میری جو مدد ہے، میری جو کمک ہے، وہ میرا خدا آسمان سے میرے لیے بھیجتا ہے. ہلیلویا. اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا مددگار اس کا خدا کا جو بندہ ہے یعقوب. کیونکہ یعقوب سے خدا پیار کرتا تھا، اور یعقوب جس کام میں ہاتھ لگاتا تھا خدا اسے برکت دیتا تھا. وہ جب اپنے ماموں کے گھر میں تھا، لابن کے گھر میں، اس وقت بھی خدا نے اسے برکت دی. وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، وہ کاشتکاری کرتا تھا، وہ جس طرح بھی جاتا تھا، جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا تھا، خدا اس میں برکت دیتا تھا. اور یہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ تو جس کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا میں تیرے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ڈالوں گا. آج لوگ کہتے ہیں ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کماتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگ خدا سے دور ہیں. وہ لوگ خدا کی تابعداری میں نہیں ہے، وہ لوگ خدا کے حضور میں نہیں ہے، وفاداری کے ساتھ نہیں چلتے، جس کی وجہ سے ان کی کمائی میں برکت نہیں ہے. لیکن راست بات جو ہے وہ تھوڑا کماتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. جو تھوڑا کماتا ہے خدا اس میں برکت دیتا ہے. کیونکہ لکھا گیا اے نوکر تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہتوں کا مختار بناؤں گا. اسی کے نظر وہ تھوڑا ہے، اسی تو جو خدا نے کی دی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا ہمارے پاس تھوڑا ہے، خدا کو کیا دیں. لیکن جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہی زیادہ کا جو ہے وہ مختار ہوگا. اور جو بہتوں کا مختار ہے وہ تو اپنی سوچ ہی چینج کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس میں نہمیہ کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں 8 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے تم اداس مت ہو کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. آمین. تم اداس مت ہو
क्योंकि खुदावन में तुम्हारी शादमानी है। हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पनाह है वो हमारा खुदा है। हमारा जो किला है वो हमारा खुदा है। हमारी जो सिपर है वो हमारा खुदा है। जो हमारी मदद करता है वो हमारा खुदा है। आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात पे जो है वो फख्र करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं। और आइए एक हवाला देखते हैं, खूबसूरत हवाला। इस्तिस्ना की किताब निकालिएगा, ऐसा जरा निकालिएगा जी। इस्तिस्ना 10 बाब और उसकी 12 है जी, निकालिए तो पढ़िएगा। 10 बाब उसकी 12 है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों की मदद करता है। आमीन, आमीन। खुदा के लिए तारीफ जा सकते हैं। हालेलुया। जी पढ़िएगा। इस्तिस्ना 10 बाब और उसकी 12 आयत में कुछ यूं लिखा है, बस ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसलिए, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। खुदावंद के कलाम पढ़े जाने पर खुदावंद की मतलब है। आमीन। खुदावंद अपने खुदा से सारी जान से खुदावंद की क्या कर, बंदगी कर। खुदावंद इससे ज्यादा क्या चाहता है? इंसान से खुदा क्या डिमांड कर सकता है? खुदा का तकाजा क्या हो सकता है? खुदा इससे ज्यादा तकाजा ही नहीं करता। खुदा इससे ज्यादा तो डिमांड ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे लोग इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे ज्यादा वो कुछ भी पे नहीं कर सकते। खुदावंद सिर्फ एक ही डिमांड करता है कि तू सारे दिल से, सारी जान से क्या कर, अपने खुदा की बंदगी कर, अपने खुदा की इबादत कर, अपने खुदा के हुजूर में झुक। खुदा इससे ज्यादा तकाजा नहीं करता, खुदा इससे ज्यादा डिमांड नहीं करता, खुदा इससे ज्यादा हम पर बोझ नहीं डालता। और अगर खुदा हम पे बोझ डाले, अगर खुदा हमको कहे कि तूने बकरे देने हैं, छकरे देने हैं, मेंढे देने हैं, तूने बैल देने हैं, तो फिर हम चाहते हैं। लेकिन खुदा नहीं चाहता। खुदा सिर्फ एक ही बात करता है, और वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत करें। इसलिए हमें खुदा के हुजूर उसकी बंदगी करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसके हुजूर झुकना है। और जितना ज्यादा टाइम हम अपने खुदा को देंगे, उतनी ज्यादा हमारी जिंदगी में बरकतें होंगी। हम खुदा के कदमों में जितना ज्यादा आएंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास बरकतें होंगी। क्योंकि खुदा के कदमों में आने से फर्क क्या पड़ता है? क्या हम दुनियादारी से दूर रहते हैं, हम दुनियादारी से निकल जाते हैं। हमारे अंदर दुनियादारी नहीं होती, हमारे अंदर जो है बुरी ख्वाहिशात नहीं होती, हमारे अंदर बुरी सोचें, बुरी रवशें नहीं होती, क्योंकि हमने अपना दिल किसके साथ लगाया है? मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हम अपने खुदा के नाम को पहचानते नहीं। हमारे खुदा का नाम कैसा अल्लाह अज़ीम है। उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, आमीन, उसे वो नाम बख्शा गया। हम उसके नाम को जब पहचान जाएंगे, यीशु नाम ही जब हमारी जुबान से निकलेगा तो बरकत आना शुरू। हालेलुया। यीशु नाम ही हमारे जब होठों से निकलता है,
یسوع نام ہم جب لیتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں خداوند کا شکر ہے، خداوند کی شکر گزاری ہے، خداوند کی مہربانی ہے، تو آپ یقین جانیں آپ ڈھیروں برکتیں اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ سو اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ امثال کی کتاب میں کتنی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے۔ کس کی سنتا ہے؟ خدا کی سنتا ہے، میری نہیں، پاسٹر صاحب کی نہیں، خدا کی سنتا ہے۔ یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے جو میری سنتا ہے مبارک وہ آدمی ہے۔ اور ہم سنتے ہوئے نہیں سنتے، ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ہماری آنکھوں پر ہمارے دلوں پر جو ہے چربی چڑھا رکھی ہے۔ ہم سنتے ہوئے نہیں سنتے، ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، لیکن خدا کا بندہ کلام مقدس میں یہ بات لکھتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر کھڑا رہتا ہے۔ خدا کے پھاٹک کون سے ہیں؟ کون سے خدا کے پھاٹک ہیں؟ کیا کچھ اسپیشل پھاٹک لگے ہوئے ہیں، کوئی دروازے لگے ہوئے ہیں؟ نو، یعنی کہ خدا کے پھاٹک، خدا کے گھر کے دروازے۔ مبارک وہ انسان ہے جو اس کے پھاٹکوں میں اس کا انتظار کرتا ہے۔ ہم دروازہ بند ہونا چرچ کا، تو ہم کہتے ہیں وہ چرچ کا دروازہ بند، آج دروازہ چھوٹی ہے، آج پادری صاحب نے نہیں آنا۔ ہم یہ نہیں کوشش کرتے جا کے چابی لے آئیے، پادری صاحب سے کرو جا کے چابی لے آئیے، جا کے دروازہ کھولیے، یہ نہیں کریں گے ہم۔ لیکن دروازہ دیکھیں گے بند ہے، گھر چلے جائیں گے۔ میں ایک ویسے مثال دے رہا ہوں، دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی ایفرٹ کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے خدا کے پھاٹکوں کو کھولنے کی ضرورت محسوس کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ اپنے ذہن میں سوچا کہ ہم خدا کے پھاٹک کھولیں اور خدا کے گھر میں جا کر خدا کی عبادت کریں؟ کلام مقدس میں یہ بات بتائے گی مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، جو مجھ کو پا لیتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، جو خدا کو پا لیتا ہے اس کے اندر زندگی ہے۔ یہ موت ہم نے مرنے مرنا ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی وہ پا لیتا ہے۔ آمین۔ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے، جو سیکنڈ موت ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آمین۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی، کیونکہ آپ نے کس کا انتظار کیا ہے؟ اپنے خدا کا۔ اس کے پھاٹکوں میں ہم کھڑے رہے، اس کا انتظار کیا کہ کب میرا خدا آئے گا اور مجھے برکت دے گا، کیونکہ ہم اس بات کو جو ہے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں 10 کنواریوں کی طرح۔ جو 5 سست تھی وہ سو گئی اور جو 5 ہوشیار تھی وہ خدا کا انتظار کرتی رہی، اس کے پھاٹکوں میں کھڑی رہی کہ ہمارا یسوع، ہمارا خدا، ہمارا نجات دہندہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ان دروازوں میں جائیں گے جو ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہیں۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ ہم جا سکتے ہیں؟ زبور 18 اگر پڑھتے ہیں نا، اس میں لکھا ہے 28ویں آیت میں، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا، خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا۔ آمین۔ اس لیے تو میرے چراغ کو کیا کرے گا؟
साढ़े चिराग बुझे ने, हमारे चिरागों में रोशनी नहीं है, हमारे दिए बुझे हुए हैं। अगर कुछ जल भी है तो बहुत डिम है, उसकी रोशनी नहीं है, और अगर रोशनी है तो वो सिर्फ उस तक ही है, आगे नहीं है। ऐसे चिराग भी हैं जिनकी सिर्फ रोशनी उन तक है, आगे रोशनी नहीं है। और वो रोशनी कैसे आएगी? तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। इसलिए मेरे चीजों यहाँ पे लिखा गया, इसलिए कि तू मेरे चिराग को क्या करेगा? रोशन कर देगा। और ये रोशनी कहां से आएगी? खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम बताया गया, कलाम मुकद्दस में ये बात बताएगी कि जाओ सारी खल्क के सामने क्या करो? क्या करो? अभी मुझे समझ नहीं, क्या करो? हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जाओ सारी खल्क के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो। और ये किसको कहा गया? सारी दुनिया को कहा गया, सब तमाम लोगों को कहा गया कि जाओ सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। और जितने लोगों ने अंजील की मुनादी की है उन्होंने बरकत पाई, और आज उनके नाम किताब हयात में दर्ज है। मेरे अजीजों, खुदावंद में मसरूर है तो तेरे दिल की मुरादें, खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो आप यकीन जाने आपकी दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। आप नहीं भी मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि खुदा आपके दिलों के भेद जानता है। खुदा सब जानता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप लिस्ट अपनी पॉकेट में रखें, अपने पास रखें, अपने घर में रख दें। खुदा आपकी लिस्ट को जानता है, खुदा आपकी जरूरत को जानता है, खुदा आपके दिलों के भेद जानता है कि मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। सो इसलिए मेरे चीजों हमें खुदा के साथ दिल लगाने की जरूरत है, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर दे। हमारे जिंदगियों के अंदर अंधेरे हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर उजाला नहीं है, और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से अंधेरे खत्म हो जाते हैं और उजाला आना शुरू हो जाता है, रोशनी आनी शुरू हो जाती है, हमारी उम्मीदें बहाल हो जाती हैं, हमारी जो नाउमीदी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा खुदा हमें ब्लेस करता है। और ब्लेसिंग सिर्फ एक ही है जो दे सकता है, और वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, इसके लिए तारीफ जा सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है कि आप खुदा पर भरोसा रखें। जो इंसानों पर भरोसा रखता है तो वो कामयाब नहीं होता, लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखता है वो कामयाब होता है। उसकी हर जरूरत पूरी हो जाती है, उसकी कमियां दूर हो जाती हैं। वो कहता है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो आप यकीन जाने उनके बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मेरे घर में ये चीज नहीं है, उनके घर में पता ही नहीं होता कहां से आ जाती है चीजें, क्योंकि खुदा पर उसने भरोसा किया है। हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए, हमारा तवक्कुल खुदा पर होना चाहिए। दाऊद इस बात को बड़ा खूबसूरत बयान करता है कि मेरा तवक्कुल मेरे खुदा पर है। आमीन। हमारा तवक्कुल किस पे है? हम तो ये सोचते हैं कोई मिरेकल हो जाए, दुआ कराइए, बस मिरेकल हो जाना चाहिए। काम नहीं करना, मिरेकल चाहते हैं, काम नहीं करते, मिरेकल चाहते हैं। मिरेकल ऐसे नहीं होते। हम जब हाथ बढ़ाते हैं तो खुदा हमारे हाथों की कमाई में बरकत डालता है, हमारे थोड़े में बरकत डालता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत है। और फिर इसलिए फिर लिखा गया कि इसलिए तो मेरे चिराग को क्या करेगा?
रोशन कर देगा। तो खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो रोशनी चाहता है। शरीरों के घर पर खुदा उनकी लानत है, लेकिन साधकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। शरीरों के घरों पर क्या है? लानत है, पर साधकों के घरों में जो है, उसके मस्कन में जो है वो बरकतें हैं। और साधक लोग कौन हैं? आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग जो खुदा की इबादत करते हैं, आप लोग जो खुदा के साथ दिल लगाया आप लोगों ने, आप लोगों की जिंदगियों में खुदा की बरकत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा की बरकत से महरूम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कदमों में, उनके पास टाइम है और वो खुदा के कदमों में नहीं आते। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि शरीर के घर पर खुदा की लानत है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप मिसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 33 आयत पढ़ सकते हैं। शरीरों के घरों पर खुदावंद की लानत है, मगर रास्तबाज लोगों के घर पर, साधक लोगों के घर पर, उसके मस्कन पर खुदा की बरकत है। आप कभी रूहानी आंखों से देखिए, आपके घर पर आपको बरकत नजर आएगी। आपके दरवाजे पे लिखा होगा कि खुदावंद की बरकत है, खुदावंद मेरा छुपान है और मुझे कमी ना होगी। आप अपनी चौकियों पर जाकर देखिएगा, खुदा आपके सब अंदरूनी, जब आपके दिमाग को रोशन करे, जब खुदा आपकी आंखों को रोशन करे, तो आप देखेंगे कि खुदा की बरकतें आपके घर पर कितनी हैं। क्योंकि आप इस बात को रियलाइज करेंगे, आप अपनी पिछली जिंदगी को देखेंगे ना, पहले मैं कैसा था तो अब मैं कैसा हूँ, और पहले मेरे घर में तो ये चीजें नहीं थी, अब मेरे घर में ये चीजें हैं। तो ये बरकतें हैं, ये खुदा की बरकतें हैं। और जो खुदा की बरकतें होती हैं तो कभी खत्म नहीं होती। आमीन। खुदा कभी बरकतों को बंद करते हैं? खुदा बरकतें बंद नहीं करता, खुदा बरकतों को स्टॉप नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि मेरे लोगों ने मेरे साथ दिल लगाया है, इसलिए मैं इन्हें बरकतों से मामूल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा बड़े बड़े काम करता है। मूसा को सिर्फ एक ही भरोसा था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। बैरिक कुल्सम पे खड़ा हो गया, लेकिन उसको भरोसा था, उसको पता था कि अगर खुदा मिस्र से निकाल सकता है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मजबूत करेगा। हालेलुया। तो कितना बड़ा काम किया, कितनी देर में ब्रिज बन गया। कहते सालों साल लग जाते हैं, खुदा ने कितनी देर से ब्रिज बनाया। खुदा ने ब्रिज नहीं बनाया, उसने पानी को गोली से कर दिया। अल्लाह अल्लाह इधर ट्रैफिक से खड़े हो, राश नहीं मुकदा, मगर खुदा ने उस पानी को रोक दिया, चल गई सारी बनी इस्राएल कौम उस रास्ते में से गुजर गई। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का प्यार है, ये खुदा की मोहब्बत है। और खुदा हम सब से प्यार करता है, खुदा इंसानों से प्यार करता है, और खुदा तमाम लोगों से प्यार करता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, खुदा उनसे प्यार करता है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरे कदमों में झुकें, और जो उसके कदमों में आ जाता है वो उसकी बरकतों में शामिल हो जाता है। आमीन। जितने लोग उसके पास आ जाते हैं उसकी बरकतों में शामिल होते हैं। सो खुदा की बरकतें हासिल करने के लिए सबसे पहले काम है खुदा के साथ दिल लगाना। आमीन। जब दिल लगा लेंगे तो आप यकीन जाने कि आप बरकत पाते जाएंगे, और आपके घरों की हमेशा बरकतें जो है वो कायम और दायम रहेंगी, और कभी किसी बात का, कभी किसी मायूसी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका और मेरा खुदा हम सबके साथ है। खुदा इस काम को सलाह से हम सब अपनी बरकत दे। आमीन।